Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So here we are starting with the analysis for 8th of November. So we are seeing state assembly polls going on in Mizoram and Chhattisgarh. So they have recorded a voter turnout of around 70%. So Mizoram is 76% polling. So these are a little bit updates. Challenges we see most affected Bastar region जो है छत्तीसगढ़ स्टेट में वहां पे अगेन आईडी ब्लास्ट भी देखा गया सो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सीआरपीएफ पर्सनल्स हैव बीन डिप्लॉयड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये पूरा एक कॉरिडोर है स्पेसिफिकली विच इज अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट सो उसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर सो So this we have already taken up this advertisement. What is the capital of Mizoram? Mizoram, it's I'm like not sure, but I'm just guessing that I think it is Aizawl. Yeah, it is Aizawl, and some more information regarding Mizoram is Mizoram consists 84.5% of the forest cover, which is the highest in the country, and Kaladan is the biggest river of the state. और यहाँ की एक लेक भी है जो बहुत फेमस है जिसको पालक लेक के नाम से जाना जाता है. ठीक है, okay. Thank you for the information, Pravesh. So contributions of Chhatrapati Shivaji Maharaj हमारे लिए important हो जाएगा from the perspective of history. So Ashik, can you please, provide us details on this? Ashik, am I audible? Okay, we can move forward. Pravesh, do you want to Yes, say Masi. Yeah. Okay, so she here. Okay, Ashik. Kaushik? हाँ बोले. Actually, Mansi had a question to you that please explain something about the Chhatrapati Shivaji Maharaj. His contributions and significance. Chhatrapati Shivaji Maharaj was a patriarch or ruler of Marathas in 1660s. He fought against Aurangzeb in Deccan Peninsula और रायगढ़ में वो 1675 के आसपास में उन्हें छत्रपति का टाइटल मिला और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ फाइट किया. तो ही अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेवी. तो उसका कुछ एरियाज है वो देख लेना होगा जाकर के कहाँ कहाँ पर. ठीक है. एंड उनका जो बेटे थे सांबाजी वो अ, वो उनको कब्जा कर लिया था बाय औरंगजेब. डेट देखना होगा. तो ओवरऑल गुरिल्ला फाइटिंग इज इम्पोर्टेंट. रायगढ़ फोर्ट ऑफ रायगढ़ इज इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ से. और 1670s के आसपास में था. ठीक है, ओके अशोक. डेक्कन पेनिनसुला. कौशिक, आप मुझे ये बता सकते हैं कि किस मराठा क्लैन से शिवाजी आते थे? भोसले. थैंक यू. So Kerala High Court has to say कि we were talking about online film reviews जो दिए जाते हैं. So High Court has to say कि ये जो reviews दिए जाते हैं, the intent behind that बात की गई है, intended to inform and enlighten. So obviously reviews का purpose destroy या extort करने के perspective से नहीं होता है. So obviously ये जो minor elements रहेंगे that would be there, but जो overall major perspective रहेगा, importance जो रहती है obviously that is to spread information and enlightenment to generate more awareness amongst the people, the consumers of the films. So honest review sharing करना एक यहाँ पे aspect की हम बात कर रहे हैं. And
इसको हमने डिटेल में बाकी एस्पेक्ट्स we touched upon all those areas, so will not be repeating that. Zika virus cases center our states to intensify the surveillance. So this is one aspect जो surveillance के around activities रहती हैं. And Zika virus disease, the vector is mosquito, Aedes aegypti mosquito. It transmits the Zika, chikungunya, and also dengue. So that's there. And Zika virus is also a zoonotic disease. So zoonotic diseases are basically which gets transmitted from animals to humans. So human transmission is possible under this thing. And there is no specific drug and vaccine for the treatment for the prevention of Zika virus as of now. So viruses की जब हम generally बात करते हैं तो viruses like solely अगर हम बात करें independently viruses survive नहीं करते, they're not living in nature. उनको एक host चाहिए होता है to activate themselves and spread. So ये एक basic चीज है. We can say प्रवेश difference between virus and bacteria जो हम बोल सकते हैं. प्रवेश Yes, okay. I want to ask you that if virus is called as living being or non-living. It is living being How? because it attacks the living beings. नहीं वही That चीज would be मैं एक्सप्लेन कर रही थी. It is non-living. हम्म, जो मैंने मैं बोला बताता हूँ प्रवेश आपको वो सिंपल में कि हम्म, बैक्टीरिया वायरस में क्या फर्क है. अगर अगर बहुत सिंपल वर्ड में देखा जाए तो बैक्टीरिया के पास अपना एक सेल ऑर्गन होता है और उसके पास ओवरऑल जो भी लिविंग बींग्स से कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका कि सेल होगा, उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सब चीज कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा ही. लेकिन जो वायरस है इस फॉर्म ऑफ केमिकल. हम लोग जब कोरोना वायरस की बात करते हैं तो उसमें भी प्रोटीन है, प्रोटीन का बात करते हैं हम लोग. ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना प्रवेश, कि एक सर्कल है उसके ऊपर में जो प्रोटीन स्पाइक्स है, तो प्रोटीन स्पाइक्स है क्या, वो केमिकल. तो देयर इज अ डिफरेंस between bacteria and virus. Virus is made up of protein synthesis or protein chemicals and other chemicals also. But bacteria has the all majority of the characteristics of the living being cell. इसलिए दोनों difference है. So non-living Shikari being. is saying that it is spread by the Aedes aegypti. हाँ So हाँ. in his biological body there is a chemical reaction which is leading to the virus. Is it so? देखिए एडिस एजिप्टी वो कैरियर है, उनके अंडर में ये प्रोटीन केमिकल सिंथेसिस रहता है इन फॉर्म ऑफ वायरस. अब वो क्या, आपको जब काटेंगे तो उनका जो क्या बोलेंगे उसको, जो स्टिंग है, जो वहां से वायरस जो होगा वो पास करेगा आपके थ्रू बॉडी के अंदर में, इससे डेंगू होगा आपको या कुछ और होगा. तो प्रोटीन है बेसिकली, केमिकल है वो वायरस. इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग. ठीक है. And here we can look into कि again smuggling and poaching की बात करें तो tusks, sand boa and antlers. So we can look into कि sand boa कौन सी species है. Like we can also have a look at the picture. कहाँ Snake है. इंडिया में मिलते हैं. Their IUCN status, that is important. So यहाँ पे specifically बेंगलुरु की बात करें, 5 people they have been arrested on wildlife smuggling. So that's there. एंड यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस की हम बात कर सकते हैं. एंड इंडिया में नियर थ्रेटेंड है सैंड बोआ. ओके, नियर थ्रेटेंड IUCN स्टेटस. Wildlife Protection Act 1972 which is there, which prevents the smuggling. And there is CITES convention. Internationally बात करें तो International Convention on International Trade of Endangered Species. एंड ये आई थिंक जो सैंड वो आपने बोला ये एक स्नेक की स्पीशीज होती है जो नॉन वेनेमस में थे. ओके ठीक है. बोआ स्पीशीज के. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पंजाब कैनॉट गो फ्रॉम ग्रेनरी टू अ डेजर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर शुड सीरियसली कंसिडर पंजाब गवर्नमेंट सजेशन टू phase out paddy cultivation in the state and incentivize the farmers to switch over to traditional crops like millets, giving them minimum support price for the same in order to check कि जो rampant burning of paddy stubble है. And also it is important to review
drastically low water table in the state. So best alternative abhi ke liye, sustainable alternative is going ahead with the cultivation of traditional crops, millets ko hum bolte hain climate resilient crops at the same time. So this can help us, basically farmers ko help karega in dealing with the lower water table jo water scarcity ki problem hai, plus it will also be helping in enhancing the fertility of the soil at the same time. And apart from this, जो MSP provide की जाएगी, या compare अगर हम करें the prices of millets in the market, so they are also comparatively higher, so that can also help in boosting the farmers' income at the same time. So obviously अगर अभी जो क्रॉपिंग पैटर्न है इन द स्टेट ऑफ पंजाब, अगर उसको चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए, then it might be possible that the state of Punjab might turn into a desert. So this is what has been highlighted by the Supreme Court. So water intensive crops abhi currently they are a part of the cropping pattern, like we see rice cultivation, even sugarcane cultivation, wheat is also there. So green revolution ka one of the negative fallouts long term perspective se hame dekhne ko mil raha hai, specifically in the state northern Indian states ki agar aap baat karo, kyunki green cultivation was only a majorly concentrate rice and wheat pe hi kiya gaya tha. So it was not taken up in a diversified form. And instead of banning the paddy cultivation, we are having direct seeding of the seeds, like आप directly seed कर सकते हो, जो आपको like water hold करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा under this technique. तो different technique भी हम use कर सकते हैं instead of completely banning the paddy cultivation in Punjab. So यहाँ पे आप लोगों को और कुछ suggest करना है? मानसी, हम लोग उससे बात कर चुके पहले कि हाँ, बाकी तो वी हो मच हाँ, मिलेट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ ओके और भी एरियाज है। यहाँ पे इवन एक और एक प्रॉब्लम होता है, पता है, यूकैलिप्टस जो प्लांट है ना, तो वो भी एक वाटर इंटेंसिव प्लांट है, उसको भी अ, बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार प्रमोट करते हैं। तो कौन से क्रॉप की बात कर रहे हो? हॉर्टिकल्चर, अच्छा, यूकैलिप्टस जो हाँ, प्लांट है, तो उसको हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हाँ हमने वो बात भी की थी। प्रमोट कर सकते हैं, ठीक वाटर है, इंटेंसिव कम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो आ जाएगा, थोड़ा बहुत फूड सिक्योरिटी वाला एंगल भी आ जाएगा, तो इसलिए मिलेट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। हॉर्टिकल्चरल में वेजिटेबल्स डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी में वो भी हेल्प करेंगी। देन दिल्ली गवर्नमेंट विल स्टडी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने एक और मतलब ऑड इवन स्कीम के ऊपर बात की है, जजमेंट दी है। तो स्टेट्स एनवायरमेंट मिनिस्टर सेज कि एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्वेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कीम। सो बीन टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स। सो regarding the implementation of this odd even system, Supreme Court ने क्या बोला है, let's look into that. So vehicle rationing scheme इसको बोला जा रहा है, odd even scheme को, and Supreme Court has questioned this scheme's efficacy and termed it all optics. So इस पे हमने कल भी बात करी थी कि odd even scheme कुछ regions में हमें result मिलते हैं, in terms of the concentration of the pollutants हमें ऐसा major significant improvement नहीं देखने को मिला है despite the implementation of this scheme. So जो concentration of pollutant है वो उतना ही रहता है even after the implementation. Number of vehicles में भी इतना ज़्यादा downfall नहीं देखने को मिलता है. So वही यहाँ पे वही efficacy की बात की जा रही है. This is done problem with the 70 hours a week. Productivity और quantity की basically दो चीजें हैं यहाँ पे. So productivity, efficiency, that is much more important compared to the quantity. So India and Bhutan can change the development story of the region. So particularly we are focusing upon strengthening the connectivity projects here, like this is one rail link that we are working upon, which will be connecting Bhutan to Assam. And then there is Bhutan to West Bengal rail link. So this is one aspect of the connectivity projects. And यहाँ पे electricity production की भी अगर हम बात करें, so as per my knowledge, we also import electricity from Bhutan. ये energy exchange यहाँ बात की गई है.
So India's energy exchange, which is bringing more Bhutanese and Nepali hydropower suppliers online, while planning to distribute the energy to Bangladesh also, and Sri Lanka, will drive the intra-regional growth and revenues. So regional energy security में हम focus कर रहे हैं ज़्यादा, और so this is obviously not restricted to a one particular country. तो यहाँ पे भी economically भी obviously revenue generate हो पाएगा and energy security भी हम maintain कर पाएंगे. And economic gap with the northeast, तो इसको भी हम कैसे bridge करने के लिए we are collaborating with the neighboring countries. World Bank and सबसे important aspect ये है northeast economic development में, जब हम बात करते हैं even the potential of growth of manufacturing sector specifically northeast India में, so Japan is playing a very important role. It is investing its funds specifically northeast India में for creation of a sub-regional hub, and even World Bank is also involved in the lending of this. So these are some of the important areas where we're looking into development of Northeast India with the neighboring countries and with Japan and World Bank. So I think इसको भी इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. जो ये particular article है, awarding that hampers international law obligations, double taxation avoidance treaty या avoidance agreement, basic concept इसके पीछे यही है कि अगर आप बेसिकली दो कंट्रीज हैं या एफडीआई आ रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री से, या एक फॉरेन कंट्री की कंपनी इंडिया में बेस्ड है, तो टैक्सेशन के अराउंड मतलब किस तरीके से आप टैक्स करोगे जो उनकी प्रॉफिट्स या इनकम जो जनरेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से. सो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ही टैक्स को अप्लाई करेगी, सो दैट ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस पे भी, एंड ऑब्वियसली दिस डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप दो बार टैक्स पे करोगे किसी एक पर्टिकुलर जो आप एक टाइम पीरियड के दौरान जो इनकम अर्न कर रहे हो. सो दिस इज देयर. एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन जो ये स्टेटस होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम इसको बात करते हैं तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मींस टर्म ऐसा लगता है कि आप किसी कंट्री को फेवर करोगे, बट दिस इज नॉट द केस. इसमें बात ये की जाती है कि इक्वली आप सारी कंट्रीज को ट्रेड रिलेशंस की जब बात आती है आप इक्वल ट्रीटमेंट दोगे. सो दिस इज व्हाट डज बेसिकली दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन implies and it means. तो एक पर्टिकुलर अभी केस जो है recent judgment the assessing officer versus the Nestle case rationalizes a violation of the international law and leaves India vulnerable. So we'll have to go into the details of this particular case to understand it. So critical question is the case. जो इसकी केस है इसमें the main question was whether the most favored nation clause in tax treaties such as double taxation avoidance agreements that India has signed, so India is obviously signatory to these DTAs, could be given effect in India without notification for the same under section 90 of the IT Act. So थोड़ा technical है, but हमारा main idea जो है इसके around that needs to be cleared. So that's there. So specifically अगर हम कोटा स्टूडेंट्स की बात करें, we know about the number of suicides going up there, so mental health एक important aspect हो गया. So औषध एंड प्रवेश, आप इसको एड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स लोगे? मानसिक, कल हमने इस पे 5 पॉइंट मैंने हाँ बताए. डिस्कस. ओके ठीक है, मैं उस कोटा टाइम के पे ऊपर बता. ठीक है ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड देन. सो दिस वाज टेकन अप यस्टरडे. सो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है इट इज शोइंग अप पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. सो इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर. सॉल्यूशंस वर टेकन अप यस्टरडे. Massive displacement in Congo. So root of ethnic conflict. So there is an ethnic conflict there. And Congo is obviously an African country. So the major rebel groups in the region कौन से हैं? Tensions कैसे start हुई between the Democratic Republic of Congo and the neighboring country Rwanda. So
who are this basically? Okay, this is a particular name of the group, the Movement Do 23 Mars group. So we can even, ye name bhi direct prelims mein aa sakta hai. So it is there based in Congo. So International Organization of Migration, United Nations की एक organization है. They've reported the number of people who have been initially internally displaced from the Congo. It has risen to 6.9 million. So where are they actually migrating to? कौन सी country में migrate कर रहे हैं? तो obviously map perspective से भी ये region important हो जाते हैं. So in the eastern province of North Kivu, nearly 1 million people have been displaced due to the ongoing conflict with the rebel group. So this is the name of the rebel group. Conflict hai kya? So the conflict started in 1990s when it went through. There were two civil wars going on, 1996 mein, and then another was in 1998. So conflict erupted in the wake of Rwandan genocide. 1994 mein hua tha, jahan pe ethnic Hutu extremists, they killed nearly 1 million minority ethnic Tutsis and non-extremist Hutus. So these are the name of the ethnic communities, Hutu and the Tutsis. So रवांडा में जीनोसाइड हुआ एंड दैट्स सो बेसिकली वहां से चीजें ये स्टार्ट हुई हैं. सो दैट्स देयर मेजर एक्टर्स की बात करें, वन रेबलन ग्रुप हम बात कर चुके हैं. देन वी हैव besides this M23, then there is Allied Democratic Forces, there is Cooperative for Development of the Congo. So, and ADF jo hai, that is Uganda-based rebel group. So they've been operating since mid-1999 in Eastern Democratic Republic of Congo, and they've pledged their allegiance to Islamic State in 2019. So this also is important. We need to remember ki kaun sa group obviously kis ideology and philosophy ko support kar raha hai. And so why has there been displacement now? Abhi kya problem hai? So first, so ethnic intolerance is there. There is insurgency. And following the Rwandan genocide, around 2 million Hutu refugees, they have crossed Rwanda into North Kivu and South Kivu provinces of Democratic Republic of Congo. So they have basically, so obviously migration ho raha hai Rwanda se Congo mein. So they organized ethnic militias in DRC fearing the prosecution. So tensions have been flaring up. So that's why large scale migration ho raha hai. So obviously the refugees ke perspective se bhi we can look into this thing. So there's obviously UN Convention on Protection of Refugees as well, to which India is not a signatory. Then there is second aspect jo factor hai which is driving the people out to Congo is political uncertainty, and there is lack of inclusive governance. So even jo African continent ki northwestern countries are like Nigeria, वहां पे भी हमें मिलिट्री को देखने को मिल रहे हैं. So there is also the reason is political uncertainty. And third reason is regional tension. So the armed groups, they have been supported by the governments of Rwanda, Uganda, and Burundi at various points, acting as proxies for each other's interest in the region. And fourth factor is obviously humanitarian crisis. Food insecurity, health services are not available, water supply, obviously that is unstable and not certain. So according to the World Food Program, crisis has left more than 1.1 million people in need of food support across these locations of North Kivu, Ituri, and South Kivu. So it is important to locate all these places on map to have a proper clarity around this thing. So MiG-21 fighter jets being phased out. So कब तक we'll expect the Hindustan Aeronautics Limited supply the Indian Air Force with light combat aircraft. So these LCAs are replacing MiG-21 fighter jets. So MiG-21, they were the first supersonic fighter jets in service of Indian Air Force, and हमने उनको induct किया था into the services in 1963, and they have been a part of all the major conflicts. So more than 800 variants of these supersonic fighter jets, they have been inducted into the service, and it remained the front line fighter jet of Indian Air Force for a long time. So these are important details around this. And so we are right now, जब हम बात करें Indian Defense Forces की, तो हम indigenization पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. So LCAs are obviously they are indigenous aircraft carriers जो हम India में ही manufacture कर रहे हैं.
So it's indigenous LCAs. And with this, so Kargil war में भी obviously MiG-21 fighter jets, they were a part of it. प्रवेश, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है इंडिया का? I think we have Marut one. ठीक है, पहले था हाँ। Then एलसीआर तेजस हो गया, we have the प्रचंड हो गया। Tejas. हाँ Tejas. ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर हो गया। प्रचंड हेलीकॉप्टर हो गया। और बताइए। And yeah, so I can मतलब अभी मैं दो ही बता सकता हूँ। एंड सबमरीन और में, इसमें नेवी में सबमरीन्स में, सबमरीन नेवी हो गया किसी। हाँ या फाइटर जेट पूछ रहा। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर सकते हो। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, अरिहंत हो जाएगा। हम्म आ, और ठीक। सबमरीन्स में आईएनएस और का मिसाइल में पिनाका। हाँ बोल सकते हो, और फिर ये भी बोल सकते हैं आईसीबीएम जो भी डेवलप कर रहे हैं इंडिया, वो हो गया। आकाश अग्नि से सब, फिर ब्रह्मोस हो सकता है जॉइंट, लेकिन वो इंडिजिनस ही है एक तरह से। पृथ्वी अस्त्रा। हाँ वो उसी का है, आईसीबीएम है मतलब। ठीक है। जो 5 आईसीबीएम है, पृथ्वी से लेकर के और सबमरीन अग्नि, में आकाश। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, वही सब। तो ये फैक्चुअल चीज है कि कैसे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है। सो like AC, what is AC power, basics of transmitting electricity. So when we talk about this process, कैसे transmit होती है electricity, first any conductor that transports the electric current, the transmission efficiency is higher at lower current and higher voltage. तो एक एस्पेक्ट हो गया, दिस इज बिकॉज जो एनर्जी है, एनर्जी लॉस जो होता है ट्रांसमिशन, वो एक मेजर चैलेंज है इंडिया में अगर हम बात करें। सो वी नीड टू ऑब्वियसली मिनिमाइज दैट एनर्जी लॉस। सो इसमें भी जो नेचर ऑफ मटेरियल यूज होता है टू मेक दोज वायर्स, हाई टेंशन वायर्स, वो एक्सपेंसिव है इफ वी वांट टू really reduce that loss of energy. So it increases, the loss of energy increases during transmission as the square of the current, whereas जो amount of voltage है that voltage increase corresponds on one-on-one basis पे होता है। So here basically जो energy loss है वो square हो जाता है, मतलब वो double हो जाता है, we can say like take it that way. So if the voltage is increased by 5 units, for example, the amount of current will drop by 5 units. So basically voltage increase होने के बाद उतने ही अमाउंट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उतने अमाउंट से ही डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ वोल्टेज अगर 5 यूनिट से इंक्रीज हुई तो करंट विल ऑल्सो ड्रॉप बाय 5 यूनिट्स, बट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा दैट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 25 यूनिट्स, मतलब 5 का स्क्वायर वुड बी 25 यूनिट्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बेसिकली इट इज द रिलेशन। सो देन वी यूज ट्रांसफॉर्मर्स। सो कंडक्टर्स हो गया, जो वायर्स, हाई टेंशन वायर्स हैं, उसमें नेचर ऑफ मटेरियल हम बात कर चुके हैं। उसमें अगर आप बात करो सिल्वर की तो ऑब्वियसली वहां पे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हाँ रेजिस्टेंस कंडक्शन होता है वहां पर, रेजिस्टेंस कम होता है। कम होती है। और डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, हम्म जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना लोअर द ट्रांसमिशन कॉस्ट। क्यों ऐसा है? क्योंकि जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना आप हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हो। हाई हम्म वोल्टेज में जब करते हो हाँ, तो आपका हीट लॉस होता है ना, वो कम होता है। कम होता है, राइट। हाँ, अभी तो हमने इसमें यही देखा ना, जो ये रिलेशनशिप देखा, इसमें हुई जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा रिड्यूस होगा द लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो उसके स्क्वायर में हो रहा है। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? सो दे इंक्रीज द वोल्टेज एंड वो रिड्यूस करते हैं करंट बिफोर फीडिंग इनटू द ट्रांसमिशन लाइंस, एंड दे रिवर्स व्हेन दे आर रिसीविंग द करंट टू बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर्स। सो दिस इज बेसिकली द किलोवाट जो वोल्टेज की अगर हम बात करें। सो ट्रांसपोर्टिंग करंट एट दिस
speed and voltage, basically, not the speed. So however, more than 2000 kilowatt or so is infeasible, because then the air itself becomes conducting, which causes the cable to leak the current also. So एक ये phenomena भी है जो बहुत dangerous हो सकता है. कौशिक, Air भी हाँ बोले। conduct कर सकती है क्या आप इस current पैसेज current. को मतलब एक थोड़ा कैजुअल वे में समझा सकते हैं कि मतलब पूरा पैसेज क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर करे, थोड़ा छोटा करे मानसी, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कैसे होती है, उस सिंपल. अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स, हाँ। तो पहली बात, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता कैसे? तो आप घर में बाहर जाओगे तो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर जल गया। हम्म हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप ट्रेन से भी जाते हो, या एरोप्लेन से दिखेगा नहीं, ट्रेन से अगर जाते हो, तो आप रास्ता में देखते हो कि एक बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जैसे ऊपर में फोटो में भी ठीक है। है। हम्म ठीक है। जो ये लाइन, जब वायर जाते रहता है बहुत दूर दूर तक, तो हम्म बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है वो वायर को। तो उसका जो वो किलो वोल्ट है ना, वो 115, 230 हो सकता है, 500 हो सकता है। उससे आप दूर तक भेज सकते हो जितना ज्यादा वोल्ट रहेगा। जितना वोल्ट रहेगा उतना मतलब उसका जो डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वोल्ट यूज होगा, और तो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगा, तो क्योंकि कौशिक, इट इज सेड बोले। दैट 11,000 वॉट की पावर है, वॉट 12,000 नहीं, वॉट की पावर है, इज इट द वॉट है वो। ट्रांसफॉर्मर पावर? वॉट है, वॉट नहीं, और वॉट है वोल्ट. वो हाँ. पावर होता है। हम्म. वॉट इज पावर, मतलब कि वोल्टेज. 11,000 हाँ. वॉट है, तो वो पावर होता है। तो पावर निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, फॉर्मूला होता है उसका प्रॉपरली। वो अलग चीज लेकिन होगी. जो वोल्ट है, हाँ, वो अलग वॉट. चीज हो गया। वॉट मतलब कैपिटल W से आप उसको डिनोट करते हो. यहाँ पे जो V है वो वोल्ट है, वोल्टेज को डिनोट कर रहा है. कितनी नहीं नहीं, वी आर नॉट वोल्टेज. टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू एंड वी, आई एम जस्ट आपने आस्किंग द अभी वेरी बोला, बेसिक, आपने अभी बोला, तो वेरी वो बेसिक। कंफ्यूज हो रहे हो आप उसमें. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वॉट एंड वोल्टेज डिफरेंट है. यहाँ हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं. ओके, थैंक यू। वोल्टेज इंटू जो करंट होता है, वो वॉट होता है। तो जो घर में जब बात करते हैं इतना वॉट का है। आप कभी भी आप चार्जर को देखो, चार्जर में सेम वोल्ट रहता है, 220। हम्म. सबके घर में 220 240 के बीच में ही रहेगा, सबके घर में रहेगा। लेकिन ठीक जो है। वॉट है वो चेंज होता है, किसी का 30 वॉट का चार्जर है, ऐसे मेरा लैपटॉप का चार्जर 50 वॉट का है, मोबाइल का चार्जर 20 वॉट का होता है, तो पावर होता है डिफरेंट। ये बात ठीक कर है। रहे हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप हम्म लो ट्रांसमिशन करने के लिए, अगर आप यूज करते हो लो वोल्टेज, तो एनर्जी ज़्यादा खर्चा होगा बेसिकली। इसलिए आप हाई वोल्टेज में करते हो पूरा। जैसे, हाँ, आपको समझाना पड़े, अगर आपको बॉल को फेंकना है फर्स्ट फ्लोर में, तो कितना जोर से फेंकोगे? आराम से फेंकना है। हाँ, अगर मान लिया थर्ड में फेंकना होगा तो। हाँ, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। हाँ, तो एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी का बात नहीं हो रहा, वोल्टेज ज्यादा हाई रहेगा बेसिकली। ठीक है। तब वहां पहुंच सकेगा करंट। एक ऐसे ही समझो, अगर लेमैन्स टर्म में समझाना है तो ठीक है। आप तब वो फिर वापस क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज है तब डायरेक्ट हाई वोल्टेज को आप घर में डायरेक्ट डाल दोगे तो आपका अप्लायंस जल जाएगा। हम्म. ठीक है। इसलिए उसको कम करते हैं। उसके लिए ट्रांसफॉर्मर फिर लगा कम रहता है, करते हाँ, हैं. हाँ. ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करना, लो टू हाई, हाई टू लो। हाँ. हाँ, ठीक है। वैसे होता है। और एसी एसी पावर होता है ओवरऑल सब। हाँ, यहाँ पे बात डीसी एसी में बस फर्क AC है की वजह से और कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो एसी जो है उसको हम लाइक मॉडिफिकेशन की जब बात करते हैं तो वो और इजीली ट्रांसफॉर्मर्स उसको इजीली एसी पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. दैट डायरेक्ट करंट्स कैन नॉट. एंड ऑल्सो जो हायर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो एसी में ज्यादा देखी जाती है. और जो यहाँ पे हाँ, फैक्टर. इसी कारण के एसी का फायदा है इसमें, कि हाँ. ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको आप दूर तक भेज सकते हैं। डीसी में लॉस हो जाएगा करंट का। हम्म. इसलिए दुनिया भर में एसी यूज होता है, डीसी नहीं यूज होता है। ये छोटा सा के लिए यूज होता है, समझ रहे हो? और केबल हम्म थिकनेस भी जो है एक फैक्टर है जो इसमें हाँ, कंट्रीब्यूट करता है. तो जो जितना ज्यादा वायर थिक होगा उतना ज्यादा लॉस ऑफ उतना एनर्जी रेजिस्टेंस कम होगा. बढ़ेगा, तो आई स्क्वायर आर होता है। नहीं नहीं तो नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं. औशिक, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि थिकर जितना ज्यादा वायर होगा उतना लेस एनर्जी लॉस होगा. तो मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, बट कॉस्ट उसकी हाँ, increase एरिया हो बढ़ रहा रही है है. ना उसका, हाँ। हाँ, बट लंबाई नहीं, कॉस्ट. एरिया बढ़, हाँ। हम्म. एल स्क्वायर, हाँ, और हाँ। डिस्टेंस की आप बात कर ही चुके हैं. ट्रांसमिशन कॉस्ट उससे रिड्यूस होती है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा. एसी पावर क्या मोस्ट कॉमन वे टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर हम यूज करते हैं 3 phases ऑफ एसी करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं. सो इन एसी करंट द वोल्टेज फ्लिप्स द पोलैरिटी.
सो प्लस माइनस जो होता है उसकी बात कर रहे हैं. सो इफ वन पोलैरिटी urges the current to flow in one direction, जो opposite polarity होगा that will urge the current obviously to flow in other way. So AC frequency it is equal to the voltage flipping frequency. थोड़ा साइंटिफिक थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब साइंस ज्यादा हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड बात हो रही है. एंड हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड. सो थ्री फेज की हमने बात करी एसी सर्किट में. ईच वायर ट्रांसमिट एसी करंट इन डिफरेंट फेज. सो हम बोलते हैं ना कि इस फेज में पावर आ रही है या ये वाला फेज उड़ गया, तो यहाँ पे उस सेंस में बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम अ पावर स्टेशन जो वायर्स है दे आर रूटेड टू ट्रांसफॉर्मर्स, तो ऑब्वियसली पावर पहले जाती है ट्रांसफॉर्मर्स में, दैट स्टेप अप देयर वोल्टेज. सो जो पावर स्टेशन ट्रांसमिट करते हैं, पावर जनरेशन जो करते हैं, वो हाई वोल्टेज पे पावर को सेंड करते हैं टू द ट्रांसफॉर्मर्स, and then they are suspended from the transmission towers which must be stable and properly wired. तो ये basic चीज होगी. Insulators in contact with the wires, they draw away some current if there is a surge in the line. So insulators भी deployed होते हैं, तो उनका रोल भी important है. Like sudden अगर surge हो गया तो वो उसको control कर सकते हैं, insulate रख सकते हैं उस wire को. So circuit breakers that break the circuit अगर बहुत ज्यादा current flow करने लग गया तो. So that is important again from the safety perspective. And sudden increase कब हो सकती है? So that can be because of lightning strike. So which can affect the wire. So that is why we are having insulators and circuit breakers deployed. And apart from this, I think like we are having electrical engineers also to fire protection, from connections to computerized operations to facilities for the staff. So safety perspective से infrastructure की हम बात तो करें. यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश, मैं इसको Grid शॉर्ट समझा देता हूँ. हम्म. ग्रिड कैसे काम करता है. तो बेसिकली अगर पावर जनरेटर है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया या सोलर पावर हो गया, वहां से पावर जनरेट हो रहा है. अब वो जाएगा ग्रिड में जाएगा. आप ग्रिड देखे हो जब रास्ते में जाते हो तो बहुत सारा कनेक्शन लाइन होता है, ऐसे टाइप से पूरा क्लोज एरिया होता है. हाँ ट्रांसफार्मर ठीक है, बहुत सारा एक जगह होता है, बहुत सारा वहां होता है जाता है. ठीक है. हाँ पावर वहां हाउस से इसको बोलते आप हैं. हाँ पावर हाउस बोलते हैं एक तरह से, हाँ. तो वहीं पर जाएगा और वहां से फिर उसको अप ट्रांसफॉर्मर करेगा, मतलब कि उसको वोल्टेज बढ़ा करके उसको दूर तक पहुंचाया जाएगा. वहां से फिर लोकल जो ट्रांसफार्मर में आएगा वहां तक करंट आएगा, फिर उसको डाउन करेगा, मतलब कि वोल्टेज को कम करेगा. फिर उसके बाद फिर अर्बन एरिया सप्लाई होगा, वहां पर और डाउन करेगा. तो फिर आपका हो जाएगा करीब करीब 150 किलो वोल्ट का हो जाएगा. फिर घर सोसाइटी के बाहर में एक लगा रहेगा ट्रांसफार्मर, उसके और डाउन करेगा तो 220 वोल्ट में आ जाएगा, फिर आपको घर में भेजेगा. तो ऐसे ही होता थैंक यू फॉर यहाँ पे क्लैरिटी नॉलेज. फैक्चुअल डेटा भी है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रिड कौन सी कंट्रीज में. सो अजरबैजान, बेलारूस यहाँ पे रशिया में, एंड नॉर्थ चाइनीज स्टेट ग्रिड जो है सबसे पावरफुल है इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया के अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ग्रिड की हम बात कर रहे हैं. तो वी हैव प्रपोज दिस थिंग, वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन सन. सो दैट इज व्हाट has been proposed by India. So we can continue in part 2 of the video.